हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम 110 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। Which fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of the Constitution? Answer this question in the comment box. This question is very important. So चलिए हम start करते हैं, अपने further important questions करते हैं. Let's start with our first question today. Our first question is, right to life does not include right to die. It was held in which case? हमारे options हैं A. Rathinam versus Union of India, B option is State versus Sanjay Kumar Bhatia, C option is Chena Jagdeshwar versus State of AP, and the last option is Gyankur versus State of Punjab. The answer is guys D option, that is ज्ञानकुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो राइट टू लाइफ है दैट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19(1)D प्रोवाइड्स राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस राइट इज, ठीक है, जो आर्टिकल 19(1)D है ये प्रोवाइड करता है कि राइट टू कोई भी पर्सन है उसको राइट प्रोवाइड करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो ये राइट क्या है? सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर सर्टेन एंड स्पेसिफिक पर्पसेस, absolute and unchallengeable, not subjected to any restriction, guaranteed and any restriction is infringement. So what is the answer to this question guys? The answer is this right is subject to reasonable restriction for certain and specific purposes. ठीक है, इस राइट ये जो राइट है, ठीक है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कुछ सर्टेन और स्पेसिफिक पर्पसेस के अकॉर्डिंग. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The doctrine of double jeopardy in Article 20 subclause 2 means, ठीक है, डबल जियोपार्डी का मीनिंग क्या है आर्टिकल 22 में? सो हमारे ऑप्शंस हैं, no one can be tried and punished more than once for the same offence, one can be tried several times for the same offence, punishment once awarded cannot be enhanced in appeal or revision, our last option is one can be tried more than once but punished only once. सो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसके जो इसका मीनिंग क्या होता है डबल जियोपार्डी का? इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है उसको एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. सो ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट नो वन कैन बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following are prohibited without the consent of the President of India according to Article 18? ठीक है, आर्टिकल 18 किससे डील करता है? दैट डील्स विद द अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. सो हमारे ऑप्शंस हैं, कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल, एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज? द आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट. अगर आप आर्टिकल 18 रीड करोगे, यहाँ पे अगर आप थर्ड लाइन में देखोगे, नो पर्सन हु इज नॉट ए citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. So here it is clearly written. ठीक है, आप आर्टिकल 18 अच्छे से पढ़ लेना, there it is clearly written. So C is the answer to this question. ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. सो कीप दिस इन माइंड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स procedure established by law in Article 21 means what? हमारे options हैं, that due process of law must be followed, a procedure laid down or enacted by a competent authority. C option is the same things as due process of law, and D option is a law which is reasonable, fair and just. So the answer is guys, इसका मतलब है Article 21 में a law which is reasonable, fair and just. D is the answer to this question. Let's see a sixth question. Under Article 32, a petition can be filed to the Supreme Court by the person who himself has suffered only. ठीक है, under which of the following a relative or friend of a person aggrieved can file a writ petition? हमारे options हैं, habeas corpus, mandamus, certiorari, all of the above. सो एज वी नो, ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो आर्टिकल 32 में रिट पिटिशंस फाइल की जा सकती हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में. अब कौन सी इनमें से रिट पिटिशन है जो पर्सन ना कि खुद बट उसके बिहाफ पे फ्रेंड, रिलेटिव और अ पर्सन एग्रीव्ड, फ्रेंड ऑफ जो पर्सन एग्रीव्ड है उसको कोई रिलेटिव या फ्रेंड फाइल कर सकता है रिट पिटिशन? तो आंसर क्या है? हेबियस कॉर्पस. ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है? इलीगल डिटेन किया जाता है जब किसी पर्सन को, सो उस पर्सन के बिहाफ पे
पे उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। ए इज़ द आंसर। हमारा 7th क्वेश्चन है, पिटीशंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है कि थिंग्स दैट ऑलरेडी हैज़ बीन डिसाइडेड, जो केस पहले ही डिसाइड हो चुका है, जो आपने पहले ही कर दिया है, आप दोबारा वो चीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस फाइल होती हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, इनमें से कौन सी जो रिट पिटीशन है उस पर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन ये है हमारा। सो आंसर क्या है? द आंसर इज़ बी इज़ द आंसर। हेबियस कॉर्पस रिट पे रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज इन्वॉल्व, दैट्स वाई रेस जुडिकाटा का रूल हेबियस कॉर्पस रिट पे अप्लाई नहीं होता है। हमारा 8th क्वेश्चन है गाइज, द राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड बाय whom? By the Parliament, by the state legislature, by the Supreme Court of India, when proclamation of emergency is in operation. The answer is when a proclamation of an emergency is in operation. So जो right है under Article 32 that can be suspended. हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज़। हमारे ऑप्शंस हैं मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, सर्शियोरारी, क्वो वारंटो। द आंसर इज सर्शियोरारी। ठीक है, दिस रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ये रिट इशू हो सकती है। हमारा 10th क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। राइट, हमारे ऑप्शन है राइट टू स्ट्राइक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो व्हाट इज द आंसर दिस क्वेश्चन गाइस? द आंसर इज राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। बाकी तीनों फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू स्ट्राइक क्या है? ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सो ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दीज आर अगेन, ये हमारे 10 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। अभी तक हम 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत वास्ट है, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। एमसीक्यूज जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में। और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेजर पोर्शन कवर कर लेता है, ठीक है, एग्जाम का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।